Good morning, student. I, Kinnari Dave, welcomes you all for Standard 11, Unit 2, Structure of Atom, Part 8. Student, in this video, you are going to converse with atomic number, mass number, isobar, isotopes, isoelectronic species, which is very important topic for your competitive exam. Many questions were asked from this topic. So students, try to understand this topic clearly through this video, and if you are requesting, I am going to prepare the another video also for you for the same topic. Student, as we know, the nucleus consists of proton and neutron, and these are collectively known as nucleons. So, we can say that nucleons or nucleus. So, if we'll just say nucleus is equal to, or nucleus, or we can say it as a nucleons also. So nucleus is equal to, which contains proton and neutron. Proton plus neutron. So collectively proton and neutron is known as nucleons also. Nucleons. So सबसे पहले हम इसमें से जानते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में. Atomic number means what, students? As in the class, your roll number is to be known by the each teacher. So if suppose in the class 11S1, teacher says what is the roll number, who is the roll number 5, then so and so is roll number 5. So that 5 is the particular number कि जो उसी पूरे साल के दरमियान उसी के नंबर से वो फिक्स होता है. So here also we can say that atomic number means the roll number in the periodic table. So that we can consider as a roll number for periodic table. Periodic table के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है तो वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर से वो पहचाना जाएगा पूरे केमिस्ट्री के वर्ल्ड के अंदर. सो एटॉमिक नंबर सिंपली याद रखोगे, इट इज अ रोल नंबर फॉर द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. एंड इट इज डिनोटेड बाय Z. तो ये बात आपको याद रखनी है. सो atomic number means what? The number of proton in an atom of an element. अब प्रोटॉन कहाँ आया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया. प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. सो atomic number is the number of proton in an atom. This is the
first definition or one definition for the atomic number. Or we can say that the number of positive charge carried by the nucleus. As we know, the nucleus possesses the positive charge, that is because of the proton. So अगर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन के हिसाब से है, तो एटॉमिक नंबर को हम दूसरा डेफिनेशन से बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू the number of unit positive charge in nucleus, means the number of proton is equal to number of electron. जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रहेंगे. So that's why हम Z is equal to means roll number of the element in the periodic table is equal to we consider as a Z, और उसके लिए हम definition कर सकते हैं कि number of proton और is equal to number of electron. Then the second definition is for the mass number. मास नंबर को हम न्यूक्लॉन नंबर भी बोल सकते हैं. अभी मैंने जो आपको बताया कि न्यूक्लॉन मीन्स व्हाट, न्यूक्लियस जो है जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली आए हुए हैं, तो दैट इज नोन एज द मास नंबर. सो मास नंबर इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. सो सिंपली वी कैन से दैट कि सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और वो दोनों कहाँ आए हुए हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर. एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज अ होल नंबर. ये बात ध्यान में रखनी है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी 5.5 प्रोटॉन नहीं होते हैं, या तो कभी 13.8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या 13.8 प्रोटॉन नहीं होते हैं, है ना स्टूडेंट. तो यहाँ पर ये हमेशा मतलब कि जो मास नंबर है वो हमेशा होल नंबर ही होता है. उसका रीजन ये है कि ये सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इसीलिए. So we can say that A is equal to, A means mass number. So mass number is equal to proton plus neutron. Here we can say neutron is not having any charge, so N0 also we can write, and for the proton we can write as P plus, because we know that proton is with the positive charge. Or we can write that also A is equal to Z plus N. ये भी हम कर सकते हैं स्टूडेंट. A मतलब हमारा फिर से मास नंबर, और Z is a roll number और a we can say that atomic number. तो एटॉमिक नंबर किसके ऊपर डिफाइंड है, कल अभी हमने आगे के वीडियो में ही देखा, तो वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर. तो यहाँ पर भी हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिया है. सो हियर वी कैन राइट डाउन एज Z plus N also. न्यूक्लॉन नंबर हमेशा होल नंबर होता है स्टूडेंट, ये बात आपको याद रखनी है. पर मास ऑफ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन इज नॉट अ होल नंबर. वेट जो है, मास जो है, वो कभी होल नंबर नहीं होता है. वो हो सकता है 1.008, एज यू नो द हाइड्रोजन के लिए ही अगर हम बात करते हैं तो 1.008 ग्राम, that is the mass of the hydrogen. As we consider it for the 1
बट एक्चुअल जो मास है हाइड्रोजन का वो मास है 1.008। सो ये होल नंबर नहीं होता है स्टूडेंट, पर जो सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो तो होल नंबर होता है। Here one more example I had given to you student. As you know, ऑक्सीजन के दो आइसोटॉप्स है, एक है ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। मतलब कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है उसका मास नंबर है 17 oxygen 17 with the atomic number 8 and oxygen 18 atomic number 8। आइसोटोप से इसलिए दोनों में Z जो है वो सेम होता है। तो यहाँ पर ये जो 17 एंड 18 आइसोटोप्स है ऑक्सीजन के, उसका एक्चुअली जो मास बताया है वो मास है 17.0004 एंड फॉर ओ ऑक्सीजन 18 के लिए मास है 18.003। सो दैट्स व्हाई मास इज not a whole number. Now student, दूसरा एग्जाम्पल लेने से पहले यहाँ पर आइसोबार और आइसोटॉप्स के बारे में जाने से पहले हम एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं जिसके अंदर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करना है, वो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो हियर आई एम राइटिंग वन एग्जाम्पल दैट इज ऑक्सीजन, जो अभी हमने आगे लिया था। तो ऑक्सीजन मास नंबर 17 एंड एटॉमिक नंबर 8। अब इसमें से उसका Z जो है, हियर Z इज इक्वल टू 8 है स्टूडेंट, और A जो है मतलब कि मास नंबर जो है वो है 17। मास नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये Z इज इक्वल टू 8 है, मतलब ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन के लिए मैंने जैसे बताया हम P प्लस लिख सकते हैं। सो आई एम राइटिंग ओनली P प्लस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 8। अब इसके ऊपर से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के A तो पता ही है हमें कि A है 17। तो अब न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करना है मुझे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम लिखते हैं N0, मतलब नो चार्ज है इसलिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपको करना है आपका मास नंबर 17 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 8। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आगे हमने जब पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि A का मतलब क्या होता है। A इज इक्वल टू हमने क्या लिया था स्टूडेंट, A इज इक्वल टू हमने लिया था P प्लस N, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो A इज इक्वल टू लिया था P मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यही जो आपकी फॉर्मूला है उसे अगर हम थोड़ा सा उसमें
चेंज करते हैं। तो यहाँ हमें न्यूट्रॉन फाइंड करना था, इसलिए हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, A माइनस P कर दिया, जो आपको यहाँ से क्लियर पता चलता है। तो A इज इक्वल टू P प्लस N था और हमें N फाइंड करना था, तो हमने कर दिया A माइनस P। सो व्हाट इज योर आंसर नाउ स्टूडेंट? 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9. So 9 is the number of neutron. So ये आपको इस तरह से सम सॉल्व करने होते हैं. Now we'll go with the isobar and isotopes. अब यहाँ पर ये जो भी सारा खेल है ना स्टूडेंट, ये A और Z के बीच का ही खेल है. तो अब हम सबसे पहले आइसो बार में जाते हैं स्टूडेंट. बार मतलब क्या है, हम कहीं बाहर जाते हैं, आउट गोइंग आउट ऐसा समझते हैं, और फिर उसको याद रखने का तरीका हम सोचते हैं. तो यहाँ पर आप बाहर जा रहे हो, मतलब कि आप जो Z है उसको चेंज कर रहे हो. ये बात आप ध्यान में रखोगे स्टूडेंट. आइसो बार मतलब आप बाहर जा रहे हो, यू आर गोइंग आउट. So as you are going out, so you are going to change the Z. A to Z का खेल है ना स्टूडेंट, A to Z. तो A to Z के खेल में सबसे पहले हम Z को चेंज करेंगे. तो अगर Z चेंज है और A दोनों में सेम है, तो ऐसे स्पीसीज जो है उसे हम कहते हैं आइसोबार. तो ABCD में B पहले आता है, इसलिए यहाँ पर हम Z को चेंज कर रहे हैं और A को सेम रखते हैं. तो डेफिनेशन इज एटम विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार. और उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको बताया है, कार्बन एंड नाइट्रोजन. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. पर यहाँ आप देख सकते हो दोनों का जो मास नंबर है वो है सेम, 14 ही है. अब जाते हैं आइसोटोप्स के ऊपर. सो आइसोटोप्स, अब यहाँ पर आपने क्या चेंज किया स्टूडेंट, आपने यहाँ पर आइसो बार के लिए आपने चेंज किया Z. तो अब आपके पास में आइसो टॉप्स है. टॉप मतलब टॉप, ऊपर का, सबसे ऊपर का. तो सबसे ऊपर है A. तो आइसोटॉप्स के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट, मास नंबर को चेंज करोगे. सो फॉर द आइसोटॉप्स mass number is different. है ना स्टूडेंट, फॉर आइसोटॉप्स मास नंबर इज डिफरेंट. तो ये बात आपको ध्यान में रखने की है. इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट. क्यों? क्योंकि मास नंबर अलग हो जाते हैं, तो उसका मतलब जो गिवन स्पीसीज है वो गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे. यहाँ आप देख सकते हो, ये मैंने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स बताए हैं. हाइड्रोजन जिसके अंदर मास नंबर 1 है उसे प्रोटियम कहते हैं, जिसका मास नंबर 2 है दैट इज नोन एज ड्यूटेरियम, एंड मास नंबर 3 इज नोन एज ट्रीटियम. अब यहाँ अगर आप देखते हो तो इसके अंदर जो है उसमें प्रोटॉन का संख्या जो है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 फॉर प्रोटियम. वन प्रोटॉन फॉर प्रोटियम. उसके बाद में
अगर हम ड्यूटेरियम के लिए जाते हैं तो ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन एंड यहाँ पर मास नंबर 2 है, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रॉन भी आया हुआ है, तो 1 न्यूट्रॉन। जबकि प्रोटियम में आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं है, सो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0 फॉर प्रोटियम। अब जाते हैं हम ट्रीटियम में। स्टूडेंट, ट्रीटियम का मास नंबर है 3। सो प्रोटॉन की संख्या जो है वो तो सेम ही रहती है, सो 1 प्रोटॉन। क्योंकि यहाँ मैंने ऊपर देखो स्टूडेंट्स उसमें ही लिख के बताया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज चेंज, सो प्रोटॉन इज 1 देन न्यूट्रॉन इज 2, सो 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या जो है स्टूडेंट, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम Z से कंसिडर करते हैं, इसीलिए जब यहाँ पर Z सबका सेम है, इसीलिए हमें यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या सेम रहेगी, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज चेंज एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोटॉप्स। टॉप मतलब ऊपर, ऊपर आया हुआ होता है ए मास नंबर, तो आइसोटॉप्स में हम मास नंबर को चेंज करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट अभी मैंने जो आपको बताया, तो हम उसको कोई भी मास नंबर का और एटॉमिक नंबर का सिंबल के साथ में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर सपोज कोई भी मेटल या एलिमेंट जो है, वो एलिमेंट को हम सिंबलाइज करते हैं सपोज से एक्स से। एक्स इज एनी ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ जो है वो ऊपर, क्योंकि मैंने अभी पहले बोला ये पूरा खेल है वो A to Z के बीच का है, तो ऊपर जो रहेगा स्टूडेंट लिखा हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर रहेगा A और नीचे आएगा वो एलिमेंट का Z। तो हो गया ना ये सारा खेल A to Z के बीच का। तो सपोज अब यहाँ x इज इक्वल टू स्टूडेंट आप लेते हो, मैंने ऊपर तो एक एग्जाम्पल दिया ही है आपको, पर फिर भी यहाँ अगर आप x इज इक्वल टू लेते हो स्टूडेंट, कोई भी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो उसमें हम लेते हैं कार्बन। सो ये है कार्बन। कार्बन जो है उसका रोल नंबर मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो है 6 और उसका एटॉमिक मास जो है वो है 12। सो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर उसके आइसोटॉप्स की बात करें हम, तो कार्बन के नंबर ऑफ अगर आइसोटॉप्स है तो उसमें हमें 12, 13, 14 इस तरह से हम उसके आइसोटॉप्स में जब उसका मास नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं। एज यू नो कार्बन possess द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स 60 भी मिलता है, जिसको आप बकीबॉल कहते हो। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम उसको बोल सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है क्लोरीन का स्टूडेंट। तो क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर रोल नंबर है 17 और मास नंबर है 35। नाउ ये आपके लिए एक नया है, वैसे तो आपको ये पता ही है पर फिर भी आइसोमोर्फस एंड दूसरा हम कहते हैं आइसोमर्स। सो आइसोमोर्फस में क्या है, आइसोमर आपने नाम सुना हुआ है। आइसोमोर्फस का मतलब होता है टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड which contain the same crystalline structure
दोनों कंपाउंड अलग अलग है स्टूडेंट, पर उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो सेम है, और उसकी वजह से उसके जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी उसकी डिफरेंट होती है, और उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। सो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये है हमारा फेरस सल्फेट FeSO47H2O, जिसे हम फेरस सल्फेट, और ये है ZnSO4 7H2O जिंक सल्फेट। दोनों के आप फॉर्मूलाज देख सकते हो। तो यहाँ इसीलिए उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, पर दोनों का देखो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी ही डिफरेंट दिख रही है। ये ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है और ये व्हाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। मतलब कि Fe है वो ग्रीन कलर देता है और जिंक है वो व्हाइट कलर देता है। तो दैट इज द just difference, and this property is known as isomorphism. Next is isomer. आइसोमर जो है स्टूडेंट, उसके अंदर स्पीसीज हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होती है स्टूडेंट, उसे हम आइसोमर कहते हैं। उसके बारे में आपको आगे जब आप कार्बनिक पढ़ना शुरू करोगे, ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करोगे, तो उसमें टाइप्स ऑफ आइसोमर आएगा, जिसमें आपको पढ़ना है पोजीशन आइसोमर एंड चेन आइसोमर ऑल्सो। तो वो आगे कार्बनिक की बात है, अभी सिर्फ हम आइसोमर जो है उसके बारे में समझते हैं। सो आइसोमर का मतलब क्या हुआ, उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, सॉरी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल दिया है, उसके अलावा कोई एक और दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेके समझाती हूँ स्टूडेंट। ये अगर है हमारे पास में ये जो है स्टूडेंट, उसे हम प्रोपेन कहेंगे, और ये प्रोपेन का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ में, तो Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको दो पोजीशन आइसोमर मिलेंगे, जो मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब कि उसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगी, उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH एक क्लोरीन जो है वो स्टूडेंट यहाँ ज्वाइंट करेगा CH2 CH2 Cl। दूसरा उसका जो आइसोमर होगा स्टूडेंट, उसमें Cl जो है उसकी जगह चेंज हो जाएगी स्टूडेंट। हो सकता है वो दोनों Cl
एक ही कार्बन के ऊपर आके लग जाए CH3 CH2 और यहाँ पर CH Cl और उसी तरह से यहाँ पर Cl। मतलब ये दोनों जो है, ये और ये, उसे हम पोजीशन आइसोमर कह सकते हैं। ये जो प्रोपेन है उसकी फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो फॉर्मूला है उसकी C3 और H8। अब इसके रिएक्शन होने से यहाँ पर C3H8 जो है उसमें आप देख सकते हो कि ये प्रोपेन था, उसके साथ में यहाँ पर ये दोनों पोजीशन आइसोमर है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हुए ये। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो C3 3 4 5 और 6, इसके अंदर भी 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है। तो ये दोनों पोजीशन एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, प्रोपेन के नहीं कहते हैं हम, पर ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। ये तो मैंने आपको रिएक्शन लिख के समझाने के लिए बताया था। सो दिस टू आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो इसके ऊपर से आपको समझ में आ गया होगा, आइसोमर का मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है और उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट, ये जो है आपको बहुत काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो स्टडी वेल, मोर प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर द सेम, and as per your request I am going to prepare the new video for this also to make your doubts clear। and हाँ student, आपका जो कमेंट है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, वो मुझे मेरे मेल आईडी पे भेजना मत भूलना। and yes student, lastly please subscribe and share my channel। thank you student।